Welcome student. In this video we are going to continue our chapter molecular basis of inheritance. But before starting the new topic, let us revise what we have learnt in last video. तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने सीखा था न्यूक्लियस में क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. To prove that which one is carrying the gene, we have learned the Griffith experiment. Later on, we have learned the next experiment, that is performed by Avery, MacLeod, McCarthy experiment. He has even used the Streptococcus pneumoniae for doing the experiment. And he successfully proved that the genetic material is the same, that is transforming material is DNA. Now the third much more successful experiment was Hershey-Chase experiment. They use E. coli bacteria and bacteriophage virus to explain the concept. Now even we have seen that the DNA which is present is quite long, while the nucleus size is very less. And how this long DNA is accommodated there into the nucleus? And the answer was the DNA is showing coiling and supercoiling. So how this coiling and supercoiling is occurring? In prokaryote the pattern is different, and in eukaryote the pattern is different. So this is the coiling and supercoiling in prokaryote, and this is the coiling and supercoiling, means the solenoid is the supercoiling structure, and this is the nucleosome, means the histone bead and DNA wrapped on it is the structure how DNA is kept in nucleus. Now in this video let us learn about DNA and replication of DNA. Now how we can proceed further before learning or recalling the structure of DNA? तो आइए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमें रिकॉल करना ज़रूरी है, उसके बिना हम उसका रिप्लिकेशन नहीं पढ़ पाएंगे. तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, एक बार उसको रिकॉल के लिए, इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. जैसे एक मोतियों की माला होती है, कुछ उसी तरह से न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन यानी डीएनए मॉलिक्यूल है. इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड. नाउ व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड वन is made up of pentose sugar and nitrogen base. Now pentose sugar, as the name indicate, pentose यानी 5 कार्बन की रिंग. तो आप यहाँ देखेंगे 5 कार्बन आप अच्छे से देख पा रहे हो. ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये नंबर 2, नंबर 3, 4 and 5. Okay, so C5H10O4. Now this, at this second position, observe it carefully that here it is not having OH, it is having only H. So we call it as a deoxy. So deoxy यानी एक OH group कम, ribose sugar. Now it is the nitrogen base. Now the nitrogen bases are of two types, purine and pyrimidine. Now purine, they are again of two types, that is adenine and guanine. Pyrimidine is of two types, cytosine and thymine. So it is very easy to remember, क्योंकि ये आपको याद रहना ज़रूरी है. pyrimidine में भी Y है, cytosine में भी है और thymine में भी है. तो अच्छे से याद रखिएगा कि पायरिमिडीन कौन है और प्यूरिन कौन है. नाउ
Thus, ultimately, we come to the point that DNA is a polymer of nucleotide which is made up of nucleoside and phosphoric acid. So, phosphoric acid, it is H3PO4 and this is the structure. ये इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट है जो डीएनए में है. अब ये तो हो गई इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट, but how they are attached with each other. So this is the diagram showing single nucleotide. So here you can see that at C5 position phosphoric acid is attached and one H2O molecule is given out during the bond formation. Now at this C1 position nitrogen base is attached and one H2O molecule is given out while the bond formation and it is a glycosidic bond and thus ribose, nitrogen base and phosphate group. So one nucleotide, this is a whole is one nucleotide is attached with another nucleotide by means of phosphodiester bond. सी डाईस्टर यानी जहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व है उसको हम ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं. तो यहाँ देखिए ये फॉस्फरस है और ये ऑक्सीजन है, इस वजह से हम बोलेंगे फॉस्फो. दोनों तरफ ऑक्सीजन है इस वजह से बोलेंगे डाईस्टर बॉन्ड. तो यही हमने यहाँ पे दिखाया है. तो लॉन्ग चेन हमने दिखाई है. तो आप देखेंगे अब हमने बहुत शॉर्ट में ड्रॉ किया है. दिस ब्लू वन is the deoxyribose sugar, this green one is the phosphate group and A for adenine. So base pairing between the two strands, so it is a double stranded structure, is very specific. क्या है? ATGC. So it is having double and GC is having triple hydrogen bond. तो हमारे कितने बॉन्ड हो गए देखिए, यहाँ पे हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. यहाँ जो बॉन्ड बना है शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में उसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. दो नाइट्रोजन बेस के बीच में है हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, सो दिस इज द लॉन्ग चेन एंड इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री. अब इस लॉन्ग चेन में आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है, that see in this chain oxygen is having upward orientation. ये देखिए, and here in this strand oxygen is having the another anti-parallel orientation. तो यहाँ पे देखिए ये थर्ड कार्बन, ये देखिए ये नंबर 3 इस रिंग का. सो दिस कार्बन 3 is free. And here at the end of this DNA, 5 carbon, 5th carbon is free. So we will call it as 5:3 orientation and this one is having the opposite like this. 3:5 3:5 and 5:3 orientation. So in between this one nucleotide and in between this nucleotide, this black one is a phosphodiester bond at C3 position. Okay, now what is the main function of DNA? DNA is having inheritance function. तो हमारे सारे genes एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वाया डीएनए ही पहुंचते हैं. दूसरा रिप्लिकेशन यानी अपने जैसे ही और एक कॉपी बनाना, क्योंकि हमारे बॉडी में जब रिपेयर प्रोसेस होती है, ग्रोथ होती है, तो सेल को सेल डिवीजन करना पड़ता है, तब जाके अपने जैसे ही और नंबर ऑफ कॉपीज तैयार करना ये भी डीएनए का काम है. एंड व्हाट इज द थर्ड फंक्शन? आपने मेंडल में बहुत बार सुना होगा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. तो फिनोटाइप यानी एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर.
तो मेरे इसमें जो भी जीन है जिसकी वजह से मेरा स्किन का कलर कैसे बनेगा, तो स्किन का कलर यानी फिनोटाइप एंड द जीन मीन्स द जीनोटाइप। तो फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने के लिए डीएनए को प्रोटीन सिंथेसिस करना पड़ता है। एंड सो दीज आर द मेन 3 functions of DNA. Okay, now in major functions of DNA which just now we have seen, हम उनको 2 अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या है, देखो, हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन और ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए यानी क्या, तो व्हेन द डीएनए सिंथेसाइज आरएनए एंड प्रोटीन, तो ये जो वो बनाता है उसे बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग होते हैं ये सारे आरएनए, ये प्रोटीन भी अलग अलग होते हैं, इसलिए शब्द यूज किया हेटेरो। ऑटो कैटालिटिक यानी सेल्फ को रिप्लिकेट करने के लिए, यानी सिंथेसिस ऑफ डीएनए, तो खुद को रिप्लिकेट करना है, इस वजह से इसको बोला है ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। ओके, now let us start with a very important question which can be there for 4 marks in board exam, that is the replication of DNA. During the replication of DNA, how exactly it is occurring? तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे मैंने 5:3 वे एक स्ट्रैंड है और यहाँ पे 3:5 वे दूसरा स्ट्रैंड है। तो आप देखेंगे यहाँ से ये ब्रेक करना शुरू हो गया और ये ब्रेकिंग कंटिन्यू होता जा रहा। जहाँ पे ये ग्रीन वाला स्ट्रैंड यानी ओल्ड स्ट्रैंड है, तो देखिए ओल्ड स्ट्रैंड और एक नया वाला स्ट्रैंड यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा। यदि यहाँ पे एडेनिन है तो अपोजिट स्ट्रैंड पे थाइमीन आ जाएगा, और यदि यहाँ पे थाइमीन है तो यहाँ पे एडेनिन आ जाएगा। यानी देखिए ये पेयर और ये पेयर तो सेम ही बन गई, यानी ये तो एग्जैक्टली जेरोक्स कॉपी हो गई। यस, it is the formation of exactly the Xerox copy of the parent DNA. Now let us see how the process occur. The process in which DNA replicate itself, खुद का multiplication वो कर लेता है, so itself to form 2 exact copy of daughter DNA is replication. अब ये कब होता है, तो 11th स्टैंडर्ड में आप सेल डिवीजन पढ़े थे, तो सेल डिवीजन में आप सेल साइकिल भी पढ़े थे। लेकिन चलिए मैं एक बार याद दिला दूं कि आप पढ़े थे सेल साइकिल इज हैविंग G1 S एंड G2। तो ये सेल साइकिल इस तरह से आगे बढ़ रही थी और इस तरह से कंप्लीट हो रही थी। सो द फर्स्ट इज G1 S G2 and M for cell division. तो DNA replication occur in S phase. Okay? Now, this is given by Watson and Crick. तो 11th में आपने DNA स्ट्रक्चर जब पढ़ा था तो DNA का स्ट्रक्चर भी वैटसन एंड क्रिक ने एक्सप्लेन किया था, for which both of them are the Nobel awardee. अब डीएनए रिप्लिकेशन में कौन से स्टेप्स हैं, तो पहली स्टेप दैट इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए यहाँ पे यदि यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन आना चाहिए। इसका मतलब कि न्यू स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लगेंगे। तो दीज न्यूक्लियोटाइड एज इट इज़ नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए उसको एक्टिवेशन करना पड़ेगा, यानी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक्टिवेशन कैसे होगा, डेफिनेटली बाय यूजिंग द एनर्जी यानी एटीपी। सो सी DAMP लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे लिखा है डीऑक्सीराइबो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो अब मोनो है तो उसका डाई और ट्राई करना पड़ेगा, यानी फॉस्फेट उसको देना पड़ेगा। तो क्या बन गया, देखिए यहाँ पे
DAMP plus ATP gives rise to deoxyribose adenosine ट्राइफॉस्फेट यानी T। ये रिएक्शन के लिए E फॉर एंजाइम ज़रूरी है जो कि फॉस्फोराइलेज। नाउ जैसे मैंने एडेनिन का किया ठीक उसी तरह से लाइक दिस DTTP, DCTP, DGTP आर फॉर्म। यानी मैंने एडेनिन का करके दिखाया, आपको इन चारों के बार बार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक 10 मिनट में अपना क्वेश्चन लिख के हो जाना चाहिए, तभी 3 घंटे में आप 70 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो नेचुरली यहाँ ऐसी जगह पे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। Now all the activated nucleotide are available in nucleoplasm. Now number 2, the point of origin यानी इनिशिएशन पॉइंट। तो डीएनए रिप्लिकेशन कहाँ स्टार्ट होगा? तो देखिए यहाँ पे डीएनए है, तो डीएनए में यहाँ पे भी रिप्लिकेशन पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे भी दूसरा रिप्लिकेशन पॉइंट हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक ओरिजिन, यहाँ पे दूसरी ओरिजिन, तो ओरिजिन काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख के रखा है इन प्रोकैरियोट ओनली वन ओरिजिन, यानी बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ओरिजिन होती है। लेकिन हमने जो यहाँ पे डीएनए ड्रॉ किया है वो तो यूकैरियोट्स का है। सो यूकैरियोट इज हैविंग मोर देन वन ओरिजिन, यानी एक से, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ड्रॉ किया है यूकैरियोटिक डीएनए हेलिक्स एंड इट इज़ हैविंग 2 ओरिजिन। तो ये देखिए इस ओरिजिन पे क्या हुआ, सबसे पहले प्रोसेस हो गई डीएनए हेलिकेज। सो दिस इज द एंजाइम। जब भी किसी शब्द को ASE एज ये आप देखते हो तो समझिएगा कि ये एंजाइम का नाम है। ओके ASE, तो यानी ये एंजाइम का नाम है। ओके नाउ ये जो हेलिक्स है, ट्विस्ट है, उसको पहले सीधा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट हो गया, ये एक सिंबॉलिक डायग्राम है। तो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए इज डन फर्स्ट विच इज बाय मीन्स ऑफ एंजाइम डीएनए हेलिकेज। नाउ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये देखिए ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे दिखाया है और यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो क्या स्टार्ट हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस स्टार्ट। ओके एंड दैट इज डन बाय एंजाइम टोपोआइसोमरेज। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना शुरू हो जाएगा और ये आगे आगे बढ़ेगा, तो ये कैसे बनेगा? देखिए ये ब्रेक हो चुके, ये भी ब्रेक हो चुके और ये वाले अभी ब्रेक होने बचे हैं। एंड सो इट लुक लाइक वाई स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड इंग्लिश लेटर वाई। नाउ दिस इज कॉल्ड एज रिप्लिकेशन फोर्क। सो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस रिप्लिकेशन फोर्क, what is happening? See, it is having the 2 separated strand and this fork will proceed further. In this case, the 3:5-way strand is called leading strand and the 5:3-way strand is called as a lagging template. तो टेम्पलेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी पे इस तरह से एक दूसरा न्यू स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट होगा। यहाँ पे देखो हमने डिटेल में दिखाया है। अब देखिए यहाँ पे तो क्या सीखे हम लोग? देखिए यहाँ पे पैरेलल लेवल पे लिखा है हमने लीडिंग टेम्पलेट एंड लैगिंग टेम्पलेट। ओके अब देखिए जो एंजाइम हमारे लिए ज़रूरी है वो है डीएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नया स्ट्रैंड फॉर्मेशन शुरू करेगा। फॉर दैट व्हाट इज दिस? दिस ग्रीन वन इज नथिंग बट it is called as, so this one is called as RNA primer.
आरएनए प्राइमर यानी एक छोटा सा आरएनए होता है जो यहाँ पे एडेनिन है कि थाइमिन है ये आइडेंटिफाई करता है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद ये आरएनए प्राइमर यहाँ से दैट इज DTP को अट्रैक्ट करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया T, और उसमें से जैसे ही बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे एनर्जी लिबरेट हो जाएगी और वो DTP से सिर्फ दैट इज द थाइमिडाइन न्यूक्लियोटाइड ही बचा रहेगा। तो एनर्जी खुद यही सप्लाई करता है। नाउ यहाँ पे यदि गुआनिन है तो यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म से ये DGTP इसको अट्रैक्ट करेगा। सॉरी, यहाँ पे ग्वानिन है तो हमको क्या लगेगा, तो देखिए CTP लगेगा जो कि अट्रैक्ट हो जाएगा एंड इट विल कम हियर। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है, DNA पॉलीमरेज जो इसे बनाते जा रहा। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कंटिन्यूएशन में स्ट्रैंड बनाया है, लेकिन यहाँ पे मैंने छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बनाया है। ऐसा क्यों? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो बी वेरी अटेंटिव। नाउ दिस DNA polymerase can synthesize the strand in 5:3 way only. It cannot prepare in 3:5 way. So the synthesis is occurring in reverse way. देखिए उल्टा उल्टा ये प्रिपेयर कर रहा है। तो ये कैसे प्रिपेयर किया, देखिए 5:3, 5:3, 5:3। तो छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट फॉर्म में ये सिक्रीशन कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है, उसको बोला गया है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। तो एक जापानी साइंटिस्ट जो था ओकाज़ाकी, उसने ये कंसेप्ट हमको दिया, इस वजह से उसको बोला जाता है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। बाद में ये सारे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जोड़ दिए जाएंगे। सी DNA लाइगेज विल जॉइन द फ्रैगमेंट, और ये दोनों DNA एक सरी के बन जाएंगे। अब ये दोनों बन जाने के बाद ये फिर से हेलिक्स बनना पड़ेगा। तो ये हेलिक्स कैसे बनेगा, सो सी DNA गायरेज विल कॉइल द 2 स्ट्रैंड्स, तो उसे ये फिर से ट्विस्ट कराएगा। लेट मी गिव यू वंस अगेन हम क्या क्या पढ़े थे। 1 strand is 3:5 way called as a leading template। तो ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ये भी ओल्ड स्ट्रैंड है, ये वाला न्यू है, ये वाला भी न्यू है। सो 5:3 वे इज अ लैगिंग टेम्पलेट। अब देखिए लीडिंग और लैगिंग ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट को प्रिपेयर करना और बाद में उसको जोड़ना, सो इट टेक्स लिटिल बिट मोर टाइम। सो द सिंथेसिस ऑफ दिस स्ट्रैंड इज क्विकर, बट द सिंथेसिस ऑफ दिस सेकेंड स्ट्रैंड complete is a little bit slow. So we call it as lagging template. This strand, new strand जो new है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो न्यू है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, तो जो प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन की वही आपको थियरी में लगेगी। तो देखिए उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, उसको भी एक बार रिवाइज करते हैं, तो आपको आंसर लिखने में ये बहुत आसान वाला आंसर यूज़ हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट्स पढ़े थे, तो आपको ये 2 पॉइंट्स याद है। ये देखिए क्या 2 पॉइंट पढ़े थे हम लोग। पॉइंट नंबर 1 एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉइंट नंबर 2 दैट इज़ द
पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब हमारा थर्ड पॉइंट आगे बढ़ेगा, दैट इज रिप्लिकेशन फोर्क। तो अभी अभी मैंने जो आपको सिखाया सेम हम यहाँ पे लिखे हैं, जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक वन मोर रिवीजन हो जाएगी। सो व्हाट इज दिस? सो वाई शेप्ड फोर्क फॉर्म ड्यू टू द partial separation is called as replication fork. So it is PAR, partial replication separation is replication fork. Now new strand synthesis, separated parent strand called as template strand. A small RNA called as RNA primer starts synthesis of new strand. DNA polymerase enzyme catalyze the synthesis of new strand, and the new strand is constructed. So यहाँ पे लेते हैं only in 5:3 direction. Next point, RNA primer attract complementary activated nucleotide and the new strand is constructed on old template strand. तो कॉम्प्लीमेंट्री बोला, इसका मतलब क्या है? एडेनिन होगा तो थाइमिन आएगा और थाइमिन होगा तो एडेनिन आएगा, और उसी तरह से ये, और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड दैट इज आल्सो डन बाय द डीएनए पॉलीमरेज. लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, synthesis of new strand can be in one direction only, 5:3. Therefore, one strand synthesis is continuous in 5:3 direction, called as leading strand. But the other strand synthesis is discontinuous, called lagging strand. Small fragment synthesis on the lagging strand, it is called as Okazaki fragment. The fragments are joined by DNA gyrase. The new DNA again become helix by the DNA gyrase. So this is a DNA ligase and this is DNA gyrase. ओके तो जो ब्लॉक किए हैं वो सारे एंजाइम और नाम आपके लिए MCQ का भी पार्ट बन सकते हैं, लेकिन ये रिप्लिकेशन इसी तरह से होता है, ये प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ सेमी कंजर्वेशन ऑफ रिप्लिकेशन इज डन बाय मिचेल्सन एंड स्टाल्स. ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये कंफर्मेशन किया. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ की. फिर से मैं एक बार पढ़ती हूँ. इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट यानी जिसकी डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी उस हिसाब से सेंट्रीफ्यूगेशन करके डिटेक्ट किया जा रहा. तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं कि ऐसे टेस्ट ट्यूब में कल्चर मीडियम लेते हुए उसे RPM रोटेशन पर मिनट, ये देखिए रोटेशन पर मिनट में उसको घुमाते हैं RPM में, और उस वजह से अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से ये इंग्रेडिएंट सेटल हो जाते हैं. अब उसके लिए उन्होंने जो मीडियम यूज़ किया था वो था 6 मोलर CaCl2 यानी क्या सीसियम क्लोराइड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. देखिए ये छोटी छोटी बातें जो हम यहाँ पे लिखे हैं ये आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है. दैट इज मिचेल्सन एंड स्टाल्स हैज़ गिवन द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. व्हाट दे हैव यूज्ड एज अ मीडियम, so they have used CaCl2.
अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया वो बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। देखिए इसी डायग्राम से आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इकोलाई ये बैक्टीरिया है उसको उन्होंने N15 मीडियम में कल्चर कराया। तो N15 क्या होता है, तो देखिए N14 यानी नॉर्मल लाइट नाइट्रोजन जो नॉन रेडिएक्टिव लाइट आइसोटोप होता है वो नॉर्मल नाइट्रोजन का आइसोटोप है, लेकिन N15 इज अ हेवी आइसोटोप। तो हम जब उसका रेडिएशन चेक करेंगे तो हमें ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने N15 हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यूज करके सारे इकोलाई को मल्टीप्लाई कराया। तो नेचुरली अब इस कल्चर में जो इकोलाई है उसमें सारे के सारे डीएनए में, सो इन डीएनए इट कंटेन N15 डीएनए। तो डीएनए में जो नाइट्रोजन यूज़ किया गया है वो N15 वाले टाइप का है। तो देखिए N15 को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रेड कलर। सो रेड कलर यानी N15 ये वाले दोनों स्ट्रैंड है, ये भी N15 वाला स्ट्रैंड है। ओके अब N15 वाला स्ट्रैंड जब सेंट्रीफ्यूगेशन में डाला गया तो देखिए उसकी यहाँ पे बैंडविड्थ मिली अपने को, यानी यहाँ पे वो सेटल हो गया, टेस्ट ट्यूब के एकदम बॉटम पे वो सेटल हो गया। तो रेडिएक्टिव हेवी आइसोटोप था ना, तो नेचुरली वो बॉटम पे सेटल हो गया। अब उसने क्या किया, पहला इकोलाई को दूसरे कल्चर मीडियम में कल्चर कराया जिसमें N14 रखा गया है। अब जब वो रिप्लिकेशन करेगा डीएनए एंड इट इज़ हैविंग ओनली N14, तो इसमें एक स्ट्रैंड देखिए ग्रीन वाला स्ट्रैंड जो कि बना है, ये ग्रीन वाला स्ट्रैंड N14 से, और यहाँ पे ये जो रेड वाला स्ट्रैंड है ये ओल्ड वाला ही स्ट्रैंड है और ये वाला है N15 वाला। तो जब उसको कराया गया तो यहाँ पे देखिए ये तो N15 के दोनों स्ट्रैंड थे, तो मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी हेवी था, तो डेंसिटी ग्रेडियंट बहुत लो आ गया। अब देखिए ये वाला उतना डेंसिटी ग्रेडियंट थोड़ा सा इससे पहले आ गया, N14 और N15 है ना, इस वजह से। अब उन्होंने 20 मिनट के बाद और 40 मिनट उसको कल्चर कराया, तो यानी और डीएनए मल्टीप्लाई हो गए, लेकिन कल्चर मीडियम देखिए कौन सा यूज़ किया, N14। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो दो स्ट्रैंड थे वो यहाँ पे बचे हैं N15 और यहाँ पे भी N15, लेकिन न्यू कल्चर मीडियम में ये सारे ग्रीन N14, ये भी N14। तो आप देखिए कुछ डीएनए जो न्यू फॉर्म्ड है ये पूरा पूरा N14 है, ये हाइब्रिड है, तो यहाँ पे हाइब्रिड की बैंड मिल रही है, यहाँ पे भी हाइब्रिड की बैंड मिली। तो देखिए ये वाला, लेकिन नया वाले जो फॉर्म हुए वो तो लाइट नाइट्रोजन वाले हैं, तो ये यहाँ पे आ गए, और ये वाले तो हेवी थे। तो उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि हाफ इज कंजर्व्ड एंड हाफ इज न्यू। तो हर बार उसी तरह से होगा, और ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन के रिजल्ट है वो प्रूव करता है कि डीएनए में आधा स्ट्रैंड ओल्ड है और आधा स्ट्रैंड न्यू है। दैट इज सेड टू बी सेमी यानी हाफ, कंजर्वेशन यानी प्रिजर्व्ड। तो हाफ हाफ, तो ये रिप्लिकेशन इस एक्सपेरिमेंट से बहुत बेहतरी से प्रूव हो गया।
इसे वीडियो को एक बार और सुनिएगा ताकि आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझे। इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे जो दिखाया गया है ये बेहतरी से एक बार ऑब्जर्व कीजिए। तो ये वाले पॉइंट्स, एक रिजल्ट, सेंट्रीफ्यूगेशन रिजल्ट, इस तरह से आप लिखते हैं तो यू कैन कवर 3 mark question related on this experiment. Okay, thank you.